Now, it gives me immense pleasure to welcome you all for this special event. We are truly honored to your presence for today, and we are here to announce that we have held this program of 5 days workshop about MS PowerPoint. So the participants, those who are here, they have to be present on the time, and the timing is 7:45 to 8:30 p.m. I would like to say that you have to be regular, and this workshop is from today to 2nd August. So if you are regular, then only you are able to get e-certificate. And for that, one link is given you to give your attendance. If you will give your attendance daily basis and you will attend all the workshop, then only you are going to get e-certificates. So my dear all participants, I would like to request you that you should participate and get enrolled with lots and lots of knowledge and good experience by our Honorable Sir, Dr. Subhash Chandra Sarangi. Now, I would like to welcome him with my heart and soul, and I want to say that he stands as a beacon of specialization as a gold medalist, master trainer, and national resource person, Department of Personnel and Training, Government of India. He is member of professional organizations also. The bodies are Life Associate member of Indian Red Cross Society. He is life member of SPARC, Spiritual Application Research Center, wing of Raj Yoga Education and Research Foundation of Brahma Kumaris. Now, I would like to share something very special, that he has organized a organ donation also, and he has pledged that to donate the eyes, lungs, kidneys, hearts, bone marrows, liver, pancreas, and skin as a gift of the nation through AIMS, New Delhi, upon death for the purpose of transplantation, therapy, and medical education. That you can say it is a research center also. So welcome, sir, to our this privileged team. मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस ग्रुप में प्यार और सम्मान महसूस करेंगे. हमारी टीम में आपका स्वागत है. हमें आपका साथ पाकर बहुत खुशी है, और हमारी इस 5 दिन की यात्रा में आप आनंद और सफलता से भरी विशेष बहुत महसूस करें. हमारी तरफ से, हमारी इस टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. Om Shanti. Thank you so much, Kushum Bhai, for giving such a beautiful introduction. I hope that all the participants are comfortable in both the languages, that is English as well as Hindi. तो मैं बीच बीच में हिंदी लैंग्वेज भी यूज किया करूंगा, and at the same time I will also be using the English language, because all of you are educated, literate people, and particularly computer educated people, digitally educated people. और ये जो सत्र रहेगा PowerPoint presentation का, how to design PowerPoint slides for impactful presentation. As it was said earlier by Kushum Bahan, it will be a journey of 5 days comprising of 5 sessions of 45 minutes each. तो आज हम लोग शुरू करेंगे बेसिक, और 5th डे को कंक्लूड करेंगे इन एडवांस फीचर्स. तो इस तरह से ये यात्रा रहेगी. तो सिंपल से कम्प्लेक्स की ओर हम यात्रा करेंगे, बिकॉज दिस पर्टिकुलर सेशन इज ऑर्गेनाइज्ड keeping in view the participants from different domains and with different levels of knowledge in the MS Office. तो सभी की बैकग्राउंड एक जैसा नहीं है. That is why we have decided that it will be beginning from a basic level and slowly and steadily we will be moving towards the advanced level of PowerPoint presentation.
2 years ago, we had conducted this kind of online sessions for our BK-Sols, and many brothers and sisters have already been benefited out of it. And as requested by the organizers, हमारे प्यारे दिनेश भाई जी and other team members, there was a big demand कि वही सत्र को हम दोबारा चलाएं. So keeping in view that particular request from the participants, some new as well as some old participants, we are launching the session once again. So for your kind information, the session will be interactive session. हम एक तरफ से बोलते जाएंगे और आप लोग इसको सुनते जाएंगे. This is not like that. It will be more meaningful, it will be more impactful, and the learning can take its best form whenever the participation is bidirectional. That means it should come from both sides. The faculty should say something and you should also communicate or reciprocate in the same manner. So without taking much time, let me start the screen sharing for you. मुझे लगता है कि मुझे co-host का ऑप्शन दे दिया होगा आप लोगों ने. जी. I hope you are able to see the screen now. Slide. Okay, fine. So the topic is about PPT slide design beginning to mastery, and today is the day 1 of 5 days. Let me show the slides. Slides so more. Okay. तो बीच में कहीं भी आपको किसी तरह की शंका हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो यू कैन स्टॉप मी एट एनी मोमेंट एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस विदाउट एनी हेजिटेशन. या तो फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि लेट मी फिनिश द प्रेजेंटेशन एंड एट द कंक्लूडिंग पार्ट आल्सो वी कैन गो फॉर क्वेश्चन आंसर एंड इंडिविजुअल क्वेरीज. तो आप लोगों ने एमएस ऑफिस का नाम सुना होगा, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड डे बाय डे इसकी डिमांड भी बढ़ती जाती है. सो लॉन्ग बैक, मे बी बिफोर 2000, बिफोर द ईयर 2000, ये एमएस ऑफिस की लॉन्च हो चुकी है और इसमें thousands of modern offices they have adopted this particular software for efficient and effective management of their official works. अब ये एमएस ऑफिस एक ऐसा पैकेज है, इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड है, ये एक वर्ड फाइल बनाने की जो जरूरत पड़ती है, दैट इज फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस. वर्ड प्रोसेसिंग भी इसको बोलते हैं. तो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन, लेटर कम्युनिकेशन, करेस्पॉन्डेंस के लिए इसको हम यूज करते हैं. सेकेंड इंग्रेडिएंट इज एमएस एक्सेल. ये ज्यादातर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस को आसानी से क्विकली करने के लिए एंड विथ 100% एक्यूरेसी करने के लिए एक्सेल शीट को हम लोग यूज करते हैं. तीसरी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. एमएस पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ये पावर पॉइंट नाम क्यों दिया गया, दैट विल also be discussed in details in due course of time. Fourth one is MS Access. ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप कह सकते हैं, जिसमें बहुत ही हेवी डाटा, वेरी कॉम्प्लिकेटेड डाटा को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं और उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं. इसी तरह से यू कैन लुक एट द इमेज एट द बॉटम ऑफ दिस विजुअल, जहाँ पर पब्लिशर है, टीम्स है, स्काइपे है, आउटलुक है, वन नोट है. इस तरह से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, बट extensively जो यूज होती है, that is MS Word, Excel, PowerPoint and Access. And out of these, we will be focusing upon MS PowerPoint today. So just to set the context, just to set the background of our sharing today, हमने ये background का view आपको दिखाया और अभी हम शुरू करेंगे Microsoft PowerPoint. So as the name indicates, it is a presentation which has some power in it. इसके अंदर कुछ इनबिल्ट पावर है और उस पावर को हम प्रेजेंटेशन का इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए यूज करते हैं. एंड दैट पावर इज समथिंग व्हिच इज द ट्रिक और व्हिच इज द स्किल ऑफ द डिजाइनर और द प्रेजेंटिंग पर्सन. तो यहाँ पर जैसे आप देखते हैं कि 4 बुलेटेड पॉइंट है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस. ये चारों बुलेटेड पॉइंट तो मुझे दिख रही है, आप लोगों को भी दिख रही है, लेकिन एक एक बुलेटेड पॉइंट के पीछे क्या मुझे कहना है, क्या समझाना है, कैसे समझाना है, ये सारी चीजें
उसके अंदर में इनबिल्ट है, जो कि मेरे लिए एक फैसिलिटेटिंग टूल है। व्हाट आई नीड टू स्पीक, हाउ टू एक्सप्लेन टू द पार्टिसिपेंट्स, हाउ टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस, ये सारी चीजें मुझे वो पर्टिकुलर की पॉइंट को देखते ही याद आ जाती है, पता चल जाता है। एंड दैट इज द फैसिलिटेशन और दैट इज द सपोर्ट दैट आई गेट फ्रॉम दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि इट इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस वेयर you need to keep the data, all the text materials पैराग्राफ के रूप में एक एक स्लाइड में आप टाइप कर लें या तो कॉपी पेस्ट कर लें और उसको प्रेजेंटेशन के दौरान वर्ड बाय वर्ड या सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ते जाएं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर हम सारी डाटा को, सारे इंफॉर्मेशन को नोटबुक की तरह हमारे स्लाइड में ही इंटरप्रेट कर दें और उसको क्लासरूम प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग सेशन में पढ़ते जाएं, तो वहां पर ऑडियंस को सबसे ज्यादा बोरिंग फील होती है, क्योंकि ऑडियंस खुद ही लिटरेट होती है और वो लोग भी खुद पढ़ सकते हैं। एंड ह्यूमन नेचर ऐसा है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि वंस यू फ्लैश समथिंग, फ्लैश सम कंटेंट इन फ्रंट ऑफ देम, दे स्टार्ट रीडिंग इट। इट्स बाय डिफॉल्ट होती रहती है, शुरू हो जाती है। एंड वंस दे स्टार्ट रीडिंग व्हाट इज रिटन ऑन द स्क्रीन, व्हाट इज रिटन ऑन द स्लाइड, द फोकस फ्रॉम द प्रेजेंटिंग पर्सन इज लॉस्ट। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस होती है वो ये कि बुलेटेड पॉइंट में सिर्फ की पॉइंट्स को रखा जाए और वो की पॉइंट्स को देखते ही प्रेजेंटर के मन में कुछ ऐसी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्लिक कर जाए और दोनों को सुइटेबली, जुडिशियसली, इफेक्टिवली इंटीग्रेट करके प्रेजेंट कर लिया जाए ऑडियंस के सामने, देन ओनली इट बिकम्स द मोस्ट पावरफुल प्रेजेंटेशन फॉर द ऑडियंस। वो सारे स्किल भी हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। रोज की जो सेशंस होंगे उसमें कुछ होम असाइनमेंट्स भी आप लोगों को दिए जाएंगे और साथ में प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए जाएंगे। दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स। आज डे 1 है और डे 1 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू है आप लोगों के लिए। ओपनिंग एंड रीनेमिंग ए पावरपॉइंट फाइल। सबसे पहले हम कैसे फाइल ओपन करेंगे, और फाइल जैसी ओपन होती है तो उसमें कई सारे स्लाइड्स बनाने पड़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड गो सो ऑन। अब वो स्लाइड की साइजेस कैसे तय होती है, उसके स्लाइड डिजाइन की ऑप्शन है, वो भी देखेंगे। जो टेक्स्ट मैटर उसमें हम डालेंगे उसको बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक्स कैसे करनी है, अंडरलाइन कैसे करनी है, फॉन्ट कलर को कैसे चेंज करनी है, टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करनी है, और फॉन्ट स्टाइल एंड साइज को कैसे मॉडिफाई करनी है, ये भी देखेंगे। एक नई स्लाइड कैसे इंसर्ट करेंगे या डुप्लीकेट स्लाइड कैसे इंसर्ट करेंगे वो भी देखेंगे। और फाइनली फाइल को कैसे सेव करनी है फॉर फ्यूचर यूज और फ्यूचर एडिटिंग पर्पस, वो भी देखेंगे। तो बस इतनी ही काम आज करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम वी विल बी कवरिंग दिस। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि जब पावर पॉइंट हम ओपन करते हैं, MS पावर पॉइंट, जैसे माउस में आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करते ही आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू फाइल। तो आप न्यू फाइल में पीपीटी फाइल को ओपन करेंगे। MS पावर पॉइंट को ओपन करते ही दिस इज द फर्स्ट इंटरफेस यू विल सी। इस तरह का एक होम पेज आपको दिखाई पड़ेगा और ये एक एक स्लाइड आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पर बन जाएगा। ये जो स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है अभी, ये स्क्रीन के डिफरेंट लेआउट या उसका नोमेनक्लेचर कैसे होती है उसके ऊपर भी थोड़ी सी आइडिया हम ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया राइट साइड में, देखिए इसको बोलते हैं कंट्रोल बटन। ये मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन, कलेक्टिवली हम इसको कंट्रोल बटन कहते हैं, जो फाइल को ओपन या क्लोज करने में यूज होता है। फिर देखिए उसके बाएं तरफ है क्विक एक्सेस टूल बार, जहां पर ये अनडू, रीडू, सेव ऑप्शन वगैरह आती है। फिर देखिए यहाँ नीचे में जो रिबन आपको दिखाया जा रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाया जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रिबन एंड टैब्स। इसमें कई सारे ऐसे टैब्स होते हैं और बहुत सारे ऑप्शन है, फीचर्स है, जो यूज करके हम लोग पावर पॉइंट डिजाइन करते हैं। फिर देखिए लेफ्ट साइड में जो एक स्लाइड की व्यू यहाँ पर दिख रही है, ये एक स्लाइड की व्यू, उसके बाद जब सेकंड स्लाइड बनाएंगे, थर्ड स्लाइड बनाएंगे, इस तरह से एक एक बनता जाएगा। इसको हम कहते हैं स्लाइड नेविगेशन पेन। नीचे में देखिए जो बार दिख रही है उसको बोलते हैं स्टाटस बार। उसके बाद ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स सेंटर में हाईलाइट हुआ अभी, इसको हम कहते हैं स्लाइड। ये स्लाइड में दो पार्ट ऐसे बाय डिफॉल्ट आएगा, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर ऊपर में देखिए जो न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ, एक हॉरिजॉन्टल रो में दिखाया जा रहा है और एक वर्टिकल कलम के रूप में यहाँ दिखाया जा रहा है।
ये है रूलर। रूलर हमें यूज करनी पड़ती है जहां हम सिमेट्रिकल इमेजेस या सिमेट्रिकल टेक्स्ट को डालनी पड़ती है। ये एक बेसिक लेआउट है जो पावर पॉइंट का फर्स्ट पेज को हम ओपन करते हैं तो इस तरह से दिखता है। और नीचे में दाहिने तरफ देखिए, लुकिंग एट द बॉटम साइड, यहाँ जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे आइकन्स दिखते हैं उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं स्लाइड व्यू एंड जूम स्लाइडर। इसको मैग्नीफाई करके हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहे हैं। स्लाइड व्यू एंड जूम स्लाइड, ये है स्लाइड व्यू एंड जूम स्लाइडर। उसी छवि को यहाँ पर बड़ा करके आपको दिखाया गया। यहाँ पर देखिए सबसे लेफ्ट साइड में जो दिखाया जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल व्यू, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ये नॉर्मल व्यू है। उसके बाजू में जो है ये स्लाइड शटर व्यू है। उसके बाजू में जो है ये रीडिंग व्यू है। उसके बाजू में स्लाइड शो व्यू है। अर्थात ये स्लाइड शो फुल स्क्रीन मोड में दिखाने के लिए इसमें क्लिक करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट में जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है इसको हम जूम स्लाइडर भी कहते हैं। ये जूम स्लाइडर परसेंटेज के रूप में यहाँ हाईलाइटेड है, 100% मैक्सिमम है, और यहाँ लेफ्ट साइड में निगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव। इसमें क्या होती है, जो भी हमारी कंटेंट है, टेक्स्ट है या इमेज है, वो मैग्नीफाई होगा, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा करने के लिए इस टूल को हम यूज करते हैं। तो इस तरह से एमएस पावर पॉइंट का एक बेसिक लेआउट हमें दिखने मिलता है व्हेनेवर वी ओपन एमएस पावर पॉइंट 5 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आज आप लोगों को जो सिखाया जाएगा, तो उसके बाद ये असाइनमेंट आपको मिलने वाला है कि क्या हमें करना है घर में, और ये एक दिन के अंदर में आपको करके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करना है। इसमें कोई पास फेल नहीं होते हैं, इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन ये सब बताने के पहले हम आपको सबसे पहले बता दें कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे सीखने वाले हैं। फाइल कैसे ओपन करेंगे, उसको बोल्ड कैसे करेंगे, फिर इटैलिक्स कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक जितना बताया, इज इट क्लियर टू एवरीवन, या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न हो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर आगे चल के डायरेक्टली पीपीटी फाइल ओपन करके ही आप लोगों को बताएंगे। कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। आखिरी में हम आपको कुछ कंट्रोल कमांड देने वाले हैं जो कि कीबोर्ड शॉर्टकट भी कही जाती है, यानी कुछ टाइप करने का शॉर्टकट मेथड है कि कीबोर्ड शॉर्टकट उसको बोलते हैं। कंट्रोल या अल्ट के साथ में अदर कीज को दबाने पर हमें क्या मिलती है, उस तरह से भी हम लास्ट को आपको लिस्ट भी बताएंगे। और ये पीपीटी के जो कंटेंट है, स्लाइड है, ये भी आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएगी। अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो आप उसको डायरेक्टली रेफर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक नया पावर पॉइंट फाइल ओपन करता हूँ। अब आप लोगों को यहाँ का स्क्रीन दिख रही होगी। ये चैट बॉक्स में कुछ, अच्छा ममता दीदी कह रही है क्रिएट है, क्लियर है। अच्छा क्लियर है, ओके फाइन, थैंक यू दीदी। अभी देखिए मैं पूरा स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट ए पावर पॉइंट फाइल। अभी आपको यहाँ की स्क्रीन दिख रही है क्या, होम पेज दिख रही है क्या, कोई बताएं। ओके फाइन, रितेश जी थैंक यू सो मच। अब देखिए मैं होम स्क्रीन पे यानी मेरी डेस्कटॉप में मैं एक राइट क्लिक किया, न्यू करके किया। न्यू करने पर इतने सारे ऑप्शंस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये दिखा रहा है कि न्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसको मैं नाम एक दे देता हूँ, मान लीजिए डेमो। डेमो के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, डेमोस्ट्रेशन के लिए। अब ये फाइल ओपन हो गई।
प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं फिर से बता रहा हूँ। माउस से राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के बाद न्यू में गया, न्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ पर आप देख लेना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहाँ पर क्लिक किया तो एक न्यू फाइल बन गई और उस न्यू फाइल को हमने रीनेम कर दिया। जो नाम मैंने टाइप किया वही नाम बन गया। अब ये डेमो फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। कैसे ओपन करना है, उस फाइल को सिलेक्ट किया और एंटर बटन को दबाया, या तो माउस डबल क्लिक करने पर भी वो ओपन हो जाएगी। अभी देखिए जो हमने लेआउट के रूप में पहली बार दिखा था वही चीज यहाँ पर भी आ गई। ये है फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड को देखिए यहाँ पर क्लिक टू ऐड टाइटल, नीचे में दिखा रहा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। ये बाय डिफॉल्ट मुझे सिस्टम दे रहा है, मुझे ये जरूरत है तो मैं यूज करूंगा, अदरवाइज मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट मार दिया, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट मार दिया। अब लिखूं तो कैसे लिखूं, लिखने के लिए मुझे यहाँ जाना है इंसर्ट, इंसर्ट के बाद टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स को लाके यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया मैंने, उसके अंदर में मैंने कुछ भी टाइप कर दिया। जो टाइप करूंगा कीबोर्ड में वही चीज इसमें आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कि इंडिया इज ए बिग कंट्री, इट हैज ए रिच हेरिटेज, इट हैज ए रिच हिस्ट्री। इतना मैंने टाइप किया। अब देखिए टाइप करने पर ये जो टेक्स्ट आया यहाँ, ये बहुत छोटा भी है, और कौन सी डिजाइन की टेक्स्ट मुझे चाहिए उसके ऊपर भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। मुझे ये कंटेंट मान लीजिए पसंद नहीं है, ये स्टाइल मुझे पसंद नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ देखिए बी को क्लिक किया, बी मतलब बोल्ड, ये रिबन में बोल्ड कर दिया तो देखिए ये बड़ा हो गया, बोल्ड हो गया। अब ये देखिए टेक्स्ट का फॉन्ट, फॉन्ट साइज 18 दिखा रहा है, फॉन्ट साइज इज 18 यूनिट्स। अब मैं यहाँ क्लिक किया पॉप डाउन मेनू, और इसको जहां मैं ले जाऊं जितना बड़ा करना चाहूं उसको बड़ा किया। कैसे, 36, 40, 48, 54, ये कर दिया। देखिए साइज बड़ा हो गया। अब इसको मैं माउस से पकड़ के ड्रैग भी कर सकता हूँ नीचे की ओर, इजी विजिबिलिटी के लिए दिखाई पड़ेगा। अब ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट को मैंने बोल्ड ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन मुझे ये स्टाइल की फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं फॉन्ट स्टाइल में यहाँ जा रहा हूँ, देखिए रिबन में, और यहाँ पर देखिए एप्टस बोल के एक ऑप्शन ये दिखा रहा है। मैं क्लिक करूँ तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिखाएगा। ये देखिए मुझे मान लीजिए ये एक ऑप्शन अच्छा लग रहा है, ऐसे तो बहुत सारे n नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बट यू कैन चूज एनी वन ऑफ दीज। फॉर एग्जांपल आई एम चूजिंग अमासिस एमटी प्रो ब्लैक। ये अब देखिए फॉन्ट की स्टाइल चेंज हो गई। अब मैं ये बॉक्स को थोड़ा बड़ा किया और इसको जस्टिफाई कर दूं, तो जस्टिफाई हो जाने से दोनों तरफ का अलाइनमेंट ठीक रहेगा। मैं जस्टिफाई कर दिया। अब ये फॉन्ट की कलर को मुझे चेंज करनी है, तो यही टेक्स्ट बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया था, अब ये सिलेक्टेड है, और टेक्स्ट बॉक्स में इसको रेड कलर में करना चाहूँ तो ये देखिए रेड कलर हो गया। अब कलर चेंज करनी है तो यहाँ क्लिक किया, मोर कलर्स, और ब्लू कलर करना चाहे तो ब्लू कलर हो गया। ठीक है। अब इसको और थोड़ा बड़ा करना चाहूँ तो फिर फॉन्ट की साइज में जाऊं और ये देखिए 60 कर दिया और बड़ा हो गया। तो अभी तक हमने क्या किया, पावर पॉइंट का फाइल ओपन किया। कैसे किया, माउस से राइट क्लिक करके न्यू फाइल में गए और न्यू फाइल में पावर पॉइंट की फाइल ओपन हो गई। फाइल ओपन होते ही फर्स्ट स्लाइड इंसर्ट हो गया। अब उसमें क्या किया हमने, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स में गए, ये है इंसर्ट, ये वाला। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मैंने लिया और एक बॉक्स ड्रॉ किया, उसके अंदर में टाइप किया, जो आप मैटर टाइप करेंगे वही आएगा। इंडिया इज ए बिग कंट्री, इट हैज ए रिच हिस्ट्री, मैंने इतना एग्जाम्पल के लिए किया। उसको फिर ये होम टैब में जाकर बोल्ड किया। अब मैं इसको इटैलिक्स कर रहा हूँ, आई फॉर इटैलिक्स। अब देखिए टेक्स्ट मैटर इटैलिक्स हो गया। अब इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये अंडरलाइन हो गया। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे।
नो डाउट? ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? अ, अच्छा, कुछ चैट बॉक्स में आ रहा है। ओके, क्लियर। नीरज जी बोल रहे हैं क्लियर, उषा जी क्लियर। ठीक है, थैंक यू। हमने ये इतना बेसिक फीचर्स हमने देख लिया, सीखा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। क्या क्या सीखने वाले हैं हम? नॉर्मल टू बोल्ड देखा, नॉर्मल टू इटैलिक्स देखा, नॉर्मल टू अंडरलाइन देखा, फॉन्ट कलर को चेंज करना देखा। अब हाईलाइट द टेक्स्ट, ये एक ऑप्शन आया रहा है, हाईलाइट द टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट को मैं हाईलाइट कैसे करूं? अब देखिए, मैंने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। कैसे सिलेक्ट किया मैंने? माउस से लेफ्ट साइड को प्रेस करके मैंने ड्रैग किया। अब यह टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ मैं जा रहा हूँ टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ पर मैं पॉप डाउन मेनू में क्लिक किया तो इतने सारे ऑप्शन मुझे दिखा रहे हैं। अगर मैं येलो में लेता हूँ तो ये पूरे टेक्स्ट पोर्शन येलो में हाईलाइट हो रहे हैं। अब मैं ग्रीन में लिया तो ग्रीन में हाईलाइट हो रहा है, स्काई कलर में लिया तो स्काई में हाईलाइट हो रहा है, पिंक में लिया तो पिंक में हाईलाइट हो रहा है, रेड में लिया तो रेड में हाईलाइट हो रहा है। आप यहाँ मार्क कर सकते हैं कि फॉन्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फॉन्ट का बैकग्राउंड ही चेंज हो रहा है। तो मैं येलो में रखा ये। अब देखिए, एक ही स्टेटमेंट है और इसके अंदर में जो कंटेंट है इसको मैंने बोल्ड किया, फॉन्ट स्टाइल को चेंज किया, इटैलिक्स किया, अंडरलाइन किया। अब टेक्स्ट को मैंने हाईलाइट भी किया। अब और क्या सीखने वाले थे हम लोग हाईलाइट टेस्ट करने के बाद? फिर चेंज फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल को भी हम चेंज करने वाले। कैसे चेंज करेंगे? फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करने के लिए या तो ये बॉक्स को सिलेक्ट कर लें पूरा, ये जो बॉर्डर लाइन है, या तो फिर ये टेक्स्ट को भी आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर लें ऐसे। अब यहाँ देखिए, फिर फॉन्ट का और एक डिजाइन हम देख रहे हैं। आमासिस एम्प्टी था, अब हम उसको दूसरे स्टाइल में लेना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कंजेनियल ब्लैक। ये देखिए एक नई स्टाइल, या तो कमिक sans एम्स, ठीक है, या तो और कुछ बहुत ही फैंसी स्टाइल का भी कुछ ले सकते हैं हम लोग। फैंसी फैंसी फैंसी। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कहाँ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ये है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में मैं स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ और ये देखिए लुशिडा कैलीग्राफी, ये एक बहुत फैंसी लगता है हमें। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए टेक्स्ट चेंज हो गया। अब इसका अंडरलाइन को मैं हटाऊं तो कैसे हटाऊं? पहले तो कैसे अंडरलाइन करना था वो देखें। अभी हमें अंडरलाइन को हटाना है। तो बॉक्स को सिलेक्ट किया, जो अंडरलाइन हम पहले क्लिक किए थे वहां पर अभी क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। देखिए हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि पहले वही टूल को यूज करके हमने अंडरलाइन किया था। अब ऑलरेडी ऑलरेडी अंडरलाइन में है तो उसको दोबारा क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगी। अब ये इटैलिक्स में है, इटैलिक्स को हटाना है तो बॉक्स को सिलेक्ट किया और इटैलिक्स ये जो आइकन है आई, इसको क्लिक किया तो फिर वो सीधी हो गई। जो ये कंटेंट था ये सीधा हो गया, मतलब इटैलिक्स स्टाइल हट गया। अब ये बोल्ड में है क्योंकि यहाँ बोल्ड देखिए हाईलाइटेड। अब ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट किया, बी में फिर से क्लिक किया तो ये बोल्ड से भी हट गया, नॉर्मल टेक्स्ट में आ गया। तो इतना आज हम लोग सीखे कि पावर पॉइंट फाइल क्रिएट करना, स्लाइड बनाना। अब डुप्लीकेट स्लाइड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अब देखिए यहाँ पर एक स्लाइड है, एक नंबर स्लाइड दिखा रहा है लेफ्ट साइड में। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ देखिए कॉपी ऑप्शन है, कॉपी, कॉपी कर दिया माउस क्लिक से। अब उसके बाद में देखिए पेस्ट ऑप्शन में गया। अब देखिए सेकंड वाली स्लाइड भी पेस्ट हो गई। देख पा रहे हैं? मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। एक नंबर स्लाइड, एक ही स्लाइड है, इसको मैंने लेफ्ट साइड की स्लाइड को सिलेक्ट किया। जी, कुसुम जी कह रहे हैं ठीक है, ओके थैंक यू। इसको सिलेक्ट किया, सिंपली कॉपी में क्लिक किया और इसको पेस्ट किया तो सेकंड स्लाइड बन गई। इसका फायदा क्या है? सेकंड स्लाइड में हमें ऑलरेडी ये बॉक्स, टेक्स्ट मैटर और उसके जो भी इफेक्ट्स हमने पहले दिए थे वो सारे इफेक्ट्स भी हमें रेडीमेड मिल रहा है, बना बनाया मिल रहा है। अब इसके ऊपर जो एडिटिंग करनी है ये जल्दी से आसानी से हो जाएगी। जैसे ये बॉक्स को मैंने सिलेक्ट कर दिया,
अब इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक्स को हटा दिया या इटैलिक्स को इंसर्ट किया। उसके बाद हाईलाइट कलर में दूसरा कुछ कलर दे दिया और अंडरलाइन चाहूं तो अंडरलाइन कर। तो फटाफट ये काम करने के लिए इतना हम कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है कि डुप्लीकेट स्लाइड। कैसे डुप्लीकेट स्लाइड बनेगा? यहाँ देखिए न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, यहाँ मैं कर्सर को रखा हूँ। यहाँ न्यू स्लाइड अगर इंसर्ट करूँ, देखिए क्लिक किया तो न्यू स्लाइड का कुछ बना बनाया टेम्पलेट्स आ रहे हैं। यहाँ देखिए ये टाइटल स्लाइड है, यहाँ टाइटल एंड कंटेंट मिलेगा, यहाँ सेक्शन हेडर मिलेगा। ये सब बना बनाया टेम्पलेट भी आपको मिल सकती है। आप उदाहरण के लिए एक देखते हैं, टाइटल ओनली, ये वाला मैंने क्लिक किया। अब टाइटल ओनली वाला ये आया, क्लिक टू आर्ट टाइटल, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये बॉक्स एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर हम जो भी टाइप करेंगे वो आ जाएगा। अगर हमने ओम शांति टाइप किया, देखिए ओम शांति आ गया। अब ये बॉक्स को मैं सिलेक्ट किया, फिर बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, इटैलिक्स किया, कलर चेंज किया। अब इसको मिडिल अलाइनमेंट करूं तो यहाँ पर देखिए मिडिल अलाइनमेंट किया, मतलब बॉक्स के सेंटर में ये आ जाएगा। और यहाँ फॉन्ट को बड़ा करना चाहूँ तो फॉन्ट को बड़ा भी किया। और क्या सीखना था? आज का जो प्लानिंग थी, जो देखने का सीखने का, वो तो सारे कवर हो गए। अब हम चलते हैं दूसरी चीज को देखने के लिए, वो है कि कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट। ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी, इसमें आप देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड्स है। कंट्रोल सी यानी कॉपी करना, कंट्रोल वी पेस्ट करना, कंट्रोल आई इटैलिक्स करना। जो इटैलिक्स को हमें करने के लिए यहाँ आई में क्लिक करना पड़ता था, अभी वो आई में क्लिक करने के बजाय यानी माउस यूज करने की बजाय हम सिर्फ वो टेक्स्ट मैटर को सिलेक्ट करें। जैसे ये वाला इटैलिक्स को सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल आई दबाया तो इटैलिक्स हो गया। कीबोर्ड शॉर्टकट इसको बोलते हैं। उसी तरह से कंट्रोल टी करेंगे तो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, यानी जो स्लाइड थी उसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। अगर ये वाला टेक्स्ट ऑलरेडी है तो उसको कंट्रोल डी किया तो दो बन जाएगा, मतलब डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। ये देखिए दो हो गया। अगर ये इमेज को मैं कॉपी करूँ, ये लैपटॉप का इमेज है, इसको मैं कंट्रोल डी किया, अब देखिए दो लैपटॉप की इमेज आ गई। तो ये कंट्रोल डी को हम ऐसे यूज करते हैं। अब इसको डिलीट कर रहा हूँ। फिर कंट्रोल एल का मतलब अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल आर अलाइन राइट, कंट्रोल ई अलाइन सेंटर। ये सारे कीबोर्ड शॉर्टकट है। और वही चीज यहाँ पर भी आपको रिबन के अंदर में मिलेगा। अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, और ये लास्ट वाला है जस्टिफाई। तो ये कंटेंट को या हमारी टेक्स्ट मैटर को भिन्न भिन्न अलाइनमेंट देने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अभी और 7 मिनट हमारे हाथ में है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का कोई क्वेरी हो, प्रश्न हो, या कोई स्टेप को आप रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, हम उसको बताएंगे। और इसमें जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट है ये आप लोगों के पास में व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएगी। आज ही पहुंच जाएगी या तो कल सुबह पहुंच जाएगी। और आप इसको रेडी रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल जेड अनडू है, कंट्रोल वाई रिड्यू है, कंट्रोल एस सेव प्रेजेंटेशन है, सेविंग के लिए है, कंट्रोल पी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, कंट्रोल एक्सपोर्ट है, कंट्रोल ग्रेटर देन सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट साइड स्क्वायर ब्रैकेट तो इंक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल लेफ्ट साइड स्क्वायर ब्रैकेट है डिक्रीज फॉन्ट साइज। ये सारी चीजें हम डेमो करके देखेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हमारी 5 सेशन में कहीं ना कहीं हम इसको एक एक करके डेमो में दिखाएंगे। लेकिन रेडीली आपके पास पहुंच जाए, आप उसको भाई एक जी, बार रिव्यू के रूप में देख लें तो अच्छा रहेगा। रक्षु जी भाई भाई। कुछ पूछ रहे हैं। जी। माई टेक्स्ट इज नॉट गेटिंग कलर्ड, whole text box is getting colored। अच्छा, my text is not getting colored, whole text box getting colored। अच्छा, कौन लिखते हैं? मुंगाजी। अच्छा, चक्षु मुंगाजी लिख रहे हैं। ओके ठीक है, बात करेंगे फिर। my text is not getting colored, whole text box is getting colored। ओके ठीक। अब मैं उसमें चलता हूँ, आपको जो डेमो दिखा रहा था। अब ये मैंने ओम शांति को सिलेक्ट किया, अंडरलाइन को हटा दिया ताकि आपको क्लियर विजिबल हो, बॉक्स को नीचे ले आया। अब आप कह रहे हैं कि पूरा बॉक्स कलर हो रहा है और टेक्स्ट हाईलाइट नहीं हो रहा है। अब मैं देखिए टेक्स्ट को हाईलाइट किया, सिलेक्ट किया, सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया माउस क्लिक के द्वारा, ड्रैग के द्वारा। अब यहाँ देखिए हाइलाइटर, हाइलाइटर में येलो किया,
अब देखिए टेक्स्ट हाईलाइटेड है, पूरा बॉक्स हाईलाइटेड नहीं है। पूरा बॉक्स मतलब ये जो बड़ा लाइन है आप देख रहे हैं, इतनी लंबाई, यहाँ से लेफ्ट यहाँ राइट, लेकिन वो पोर्शन सब व्हाइट है, खाली टेक्स्ट पोर्शन सिलेक्टेड। और आप जो कर रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मैं दूसरा एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको, शायद आप ऐसा कर रहे होंगे, इसको मैंने हटा दिया, यहाँ जाके देखिए नो कलर कर दूं तो सारे हाईलाइट हट जाएंगे। अब यही टेक्स्ट मैटर है। अब ये बॉक्स को मैं सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है, ये देखिए ऊपर में, ये देखिए सेव फिल, अर्थात यहाँ क्लिक करके मैं अगर रेड कर ये येलो कर दूं तो पूरा बॉक्स फिल हो गया, देखिए पूरा बॉक्स येलो कलर हो गया। जबकि हमें चाहिए था सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करना, तो ये हम नहीं करके, बॉक्स को फिल नहीं करके, ये देखिए बॉक्स सेव फिल, इसमें पॉप डाउन करेंगे तो इतने सारे कलर्स ऑप्शन आएंगे। आपको करना है नो फिल, मतलब जो आपने फिल किया था वो चली जाएगी। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। अब आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए हाइलाइटर, हाइलाइटर में येलो कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, जो भी आपको चाहिए आप उसको क्लिक करें तो आ जाए। हाँ, आई थिंक आई हैव नॉट दिस ऑप्शन। देखिए आपके पास में कौन सी वर्जन है वो मुझे तो पता नहीं है, मैं तो ऑफिस 2010 यूज कर रहा हूँ, लेकिन ऑफिस 2007 भी हो तो भी उसमें ये ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल ऑप्शन है। हाँ, MS 2007 है, उसमें देखिए आएगा, फिल कलर का ऑप्शन आएगा और ये हाइलाइटर का भी ऑप्शन आएगा। अच्छा, नहीं आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, सारे फीचर्स तो, एक तो जरूरत नहीं पड़ता है, अगर जरूरत पड़ता है तो फिर आप सबको चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। अच्छा भाई, कल एक बार आप स्क्रीन शेयरिंग कर लेना, मिल जाएगा ऑप्शन, वहीं पे होगा, बहुत बेसिक वाला है ये हाँ। ऑप्शन। हाँ जी, थोड़ा सा होना तो रिसर्च चाहिए। करेंगे हम जी। तो मिल जाएगा। और किसी के कोई क्वेश्चन है? तो आपका होम टास्क कैसा रहेगा, मैं इसको पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। होम टास्क ये रहेगा, ये मैं आपको 1 मिनट में इसको पूरा करके छोड़ देता हूँ। होम टास्क क्या रहेगा, क्रिएट ए पावर पॉइंट फाइल कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट 10 स्लाइड्स। 10 स्लाइड आपको बनानी है, एक पावर पॉइंट की फाइल बनेगी, उसको रीनेम करना है अपने नाम से, रीनेम द फाइल इन योर नेम, फॉर एग्जांपल योर नेम इज अशोक, प्रकाश, जसलीन, भारती, समथिंग, जो आपका नाम है उसी नाम से उस फाइल को रीनेम करना है। तो ये भी एक स्किल है, हाउ टू रीनेम द फाइल। उसके बाद डेमोस्ट्रेट द फॉलोइंग फीचर्स इन सेपरेट स्लाइड्स ऑफ योर पीपीटी। नॉर्मल से बोल्ड करना, नॉर्मल से इटैलिक्स, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, और हाईलाइट द टेक्स्ट, चेंज द फॉन्ट स्टाइल। कैसे किया उसका एक डेमो भी आपको हम दिखा दिए, और यहाँ भी उसको रिपीट कर रहे हैं। देखिए अप्रिसिएशन एक वर्ड है, उसको मैंने बोल्ड करके यहाँ दिखाया। अब दोनों वर्ड को कंपेयर कीजिए, देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट है और ये हाईलाइटेड टेक्स्ट है। उसी तरह से वही वर्ड को मैंने इटैलिक्स करके यहाँ पर दिखाया, देख पा रहे हैं? उसी तरह से वही वर्ड को यहाँ अंडरलाइन करके दिखा। आपको यही करना है, 10 स्लाइड में इसी को डिस्ट्रीब्यूट करके एक एक जगह में एक एक टास्क करके दिखाना है। उसके बाद देखिए ये अप्रिशिएशन वही वर्ड है, उसको फॉन्ट कलर दिया, 3 फॉन्ट कलर यहाँ पर हमने डेमो के रूप में दिखाया। 3 फॉन्ट कलर क्या क्या है, रेड है, ग्रीन है, और ये वायलेट कलर है। नेक्स्ट स्लाइड, वही डेमो के रूप में हम दिखा रहे हैं, वही अप्रिशिएशन वर्ड, ये देखिए टेक्स्ट को हाईलाइट किया, येलो, स्काई कलर और ग्रीन कलर, वर्ड वही है लेकिन बैकग्राउंड का हाईलाइट जो है वो कलर अलग अलग है। नेक्स्ट, वही एप्रिसिएशन वर्ड, और यहाँ पर देखिए फॉन्ट की स्टाइल को हमने चेंज किया। यहाँ ये एक स्टाइल है, ये एक स्टाइल है, ये एक स्टाइल है, तो कलर की बात यहाँ नहीं हो रही है, कलर तो अलग अलग है ही है। इन एडिशन टू दैट द फॉन्ट स्टाइल इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसी तरह से एक एक स्लाइड में आपको बनाना है, ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, और आप उसको ग्रुप में शेयर करेंगे तो अदर पीपल विल आल्सो गेट इंस्पायर्ड आउट ऑफ इट। तो शेयर योर पीपीटी फाइल इन व्हाट्सएप ग्रुप विद इन 1 डे। तो कल का सेशन के शुरू होने तक आप इसको पोस्ट कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कल का सेशन शुरू होगा 19:45 यानी 7:45 को। उस उस समय तक आप ये टास्क को पूरा कर लें,
बैठ के अगर बनाएंगे तो हार्डली आपको हाफ एन आवर लगेगा ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप फर्स्ट टाइम जिंदगी में कर रहे हैं तो भी आपको 1 घंटे में ये हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करके चलना, और ये शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, और कल सेशन शुरू होते तक ये टास्क पूरा हो जाए तो फिर नई इनपुट आपको मिलते जाएगा। हाँ, चैट चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर की गई है, इस जो इंशुबेन ने शेयर किया है वो अटेंडेंस आपका मार्क करने के लिए, उसको आप लोग कर लें। प्लीज वन सेकेंड, सो टुडे असाइनमेंट स्लाइड, अच्छा दिखा देता हूँ असाइनमेंट स्लाइड। ये ऐसे ही हम्म व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच ही जाएगी आपके पास, डोंट वरी। असाइनमेंट ये स्लाइड व्हाट्सएप असाइनमेंट, ग्रुप में शेयर कर दो। हाँ ये असाइनमेंट स्लाइड है, हम इसको ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, नहीं तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।